آزاد کشمیر میں انتخابی دنگل کی تیاریاں مکمل۔ الیکشن کا پہلا مرحلہ میرپور ڈویژن کے 13 حلقوں میں پولنگ آج ہوگی۔ میرپور، بھمبر اور کوٹلی کے کچھ حلقوں میں نون لیگ، پیپلز پارٹی، آئی پی پی، جماعت اسلامی میں کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ LA7 بھمبر 3 سے نون لیگ کے چودھری طارق اور آزاد امیدوار چودھری انوار الحق آمنے سامنے۔ LA1 میرپور 1 سے نون لیگ کے اظہر صادق اور پیپلز پارٹی کے افسر شاہد میں سخت مقابلہ متوقع۔ LA2 میرپور 2 سے پیپلز پارٹی کے چودھری قاسم اور نون لیگ کے عظیم بخش چودھری کا ٹاکرا۔ LA10 کوٹلی 3 سے پیپلز پارٹی کے چودھری یاسین اور نون لیگ کے فتح محمود الحسن آمنے سامنے۔ LA6 بھمبر 2 میں نون لیگ کے محمد رزاق اور پیپلز پارٹی کے خضر رحمان راجہ میں کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ کوٹلی میں 2 پریزائڈنگ افسران کے خلاف الیکشن کمیشن کا فوری ایکشن۔ ترجمان نے بتایا 2 پریزائڈنگ افسران پولنگ اسٹیشن پہنچنے کے بجائے نجی رہائش گاہ چلے گئے۔ دونوں پریزائڈنگ افسران کو معطل کر کے گرفتار کر لیا گیا۔ نئے پریزائڈنگ افسران تعینات۔ 27 جولائی کو تیر پر موڑ لگائے، پاکستان پیپلز پارٹی کو بھاری مینڈیٹ دے تاکہ ہم ریاست اور احتجاج کرنے والوں کو یہ کہہ سکیں کہ یہ صرف بلاول بھٹو زرداری کا مطالبہ نہیں، یہ میرپور کا مطالبہ ہے۔ میرپور پر احسان نہیں کر رہے، قرض ادا کریں گے، حق دیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا انتخابی مہم کے سلسلے میں میرپور ڈویژن کے شہریوں کے لیے پیغام۔ کہا عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے بنی ایئرپورٹ اور بسیں تحفہ نہیں، ان کا حق ہے۔ کل پیپلز پارٹی کو کامیاب کریں، آپ کو حق حاکمیت، حق ملکیت اور حق روزگار ملے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا پھر آزاد کشمیر کے لیے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنانے کا مطالبہ۔ کہتے ہیں کمیشن کے ذریعے ہر شکایت سنی جائے تاکہ ہر متاثرہ خاندان کو انصاف ملے۔ بارہا کمیشن کی تجویز دے چکا ہوں لیکن تاحال کوئی مثبت جواب نہیں ملا۔ سب کو پتا ہے کہ چور دروازے سے اقتدار میں نون لیگ کی قیادت آئی ہے۔ خیراتی مینڈیٹ سے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ خیراتی مینڈیٹ والے لوگ جو ہیں ان سے آپ اچھی توقع نہ کریں۔ نون لیگ فارم 47 اور چور دروازے کے ذریعے اقتدار میں آئی۔ خیرات میں حکومت کرنے والے ووٹ کیسے مانگیں گے؟ دھاندلی کے پیداواروں کو عبرتناک شکست دیں گے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی میرپور میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا وفاقی وزراء ڈیرے لگا کر بیٹھے رہے، الیکشن کمیشن نے اپنی آنکھیں بند رکھی۔ ایک صوبے کی وزراء کشمیر میں اعلانات کرتے نہیں لیکن کوئی نوٹس نہیں لیا گیا۔ نون لیگ کی حرکتوں پر الیکشن کمیشن خاموش رہنا مناسب نہیں۔ 2 دن پہلے اعلانات کیے گئے، بسیں دے کر کشمیریوں کو خریدنے کی کوشش کی گئی۔ نون لیگ کشمیریوں سے معافی مانگی۔ خیراتی اقتدار والوں کی سیاست کے دن عوام ووٹ سے ختم کریں۔ چاروں صوبوں اور وفاق کو جوڑنے والی واحد جماعت پیپلز پارٹی ہے۔ تنقید کے لیے صرف زبان ہلانا پڑتی ہے لیکن خدمت کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ اتنی باتیں کر رہے ہیں تو اپنے صوبے میں پنجاب سے ذکرین بسیں دکھاؤ، اسپتال اور سڑکیں دکھاؤ، مریم نواز جیسا اپنا گھر پروگرام دکھاؤ۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا راولپنڈی میں خواتین کے جلسے سے خطاب۔ کہا رونے والے بارش کے بعد چند منٹ کی ویڈیو دکھاتے ہیں، بعد کی تصویریں نہیں۔ مخالفین ووٹ پر بھی پیسہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، جھانسے میں نہ آنا۔ وزیر اطلاعات پنجاب بسمہ بخاری نے کہا کشمیریوں کو الیکٹرک بسیں اور کلینک آن ویلز ملنے پر پیپلز پارٹی رہنما کیوں چراغ پائیں؟ پیپلز پارٹی 17 سال اقتدار کی کارکردگی بتائے۔ پی پی آزاد کشمیر الیکشن میں سنجیدہ ہوتی تو بلاول بھٹو جلسے منسوخ کر کے نہ بھاگتے۔ صرف ٹائم بدلا ہے، نہ شکلیں بدلی ہیں اور نہ وعدے بدلے ہیں۔ وہی شکلیں، وہی وعدے، صرف 5 سال گزرتے گئے اور کوئی 25 سال بعد واپس آ رہا ہے، پر وعدے نئے ہیں۔ جب تک یہ علاقہ اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہوگا تب تک یہاں کا نوجوان خوشحال نہیں ہو سکتا۔ آزاد کشمیر کے عوام خاص طور پر نوجوان ووٹ کا استعمال انتہائی ذمہ داری اور قومی مفاد مد نظر رکھتے ہوئے کریں۔ آزاد کشمیر کی پائیدار ترقی معاشی استحکام کے لیے ضروری ہے۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کا ویڈیو پیغام۔ کہا عوام ان عناصر کے دھوکے میں نہ آئیں جو ماضی میں بڑے وعدے کرتے رہے مگر کامیابی کے بعد عوامی مسائل فراموش کر دیا۔ ووٹ ڈالنے سے پہلے عوام سے کیے گئے ادھورے وعدوں کا ضرور جائزہ لیں۔ الیکشن 2026 میرپور ڈویژن سے شروع ہو رہا ہے۔ عوام سے زور اپیل کرتا ہوں اس میں بھرپور شرکت کریں۔ تمام تر سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ پولنگ سٹیشنز پر ہوں گی، کوئک رسپانس فورس بھی موجود ہوگی۔ چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر کی شہریوں سے انتخابات میں بھرپور شرکت کی اپیل۔ کہا ہر شہری اپنا حق رائے دہی استعمال کرے، عوام گھروں سے نکل کر مرضی کے نمائندے کا انتخاب کرے۔ ریاست ووٹرز کی پولنگ سٹیشن آمد و رفت کے دوران سیکیورٹی یقینی بنائے گی۔ چیف سیکرٹری آزاد کشمیر خوشحال خان کی سیکرٹری الیکشن کمیشن راجہ شکیل کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ چیف سیکرٹری آزاد کشمیر نے کہا کشمیر میں اس وقت میلے کا سماں ہے، الیکشن مہم بھرپور انداز میں جاری ہے۔ سندھ سے کے پی تک کے سیاسی رہنما کشمیر میں موجود ہیں۔
सोशल मीडिया पर लोगों को इलेक्शन से बाज़न करने के लिए नाकाम कोशिश की जा रही है। उम्मीद है वोटर टर्नआउट पिछले इलेक्शन से ज़्यादा होगा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का कहना था इलेक्शन मुहिम के दौरान कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन पुरअमन इंतखाबात के लिए पुरअज़्म है। एक शख्स हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने गिरफ्तार किया, उसके ताने बाने इंडिया से मिलते हैं। मिस इन्फॉर्मेशन का पूरा नेटवर्क ऑपरेट हो रहा था बॉट फार्म्स के जरिए। अब इस शख्स ने दौरान तफ्तीश ये इंकशाफ किया है मोस्टली जो इसको मवाद आ रहा था वो आज़ाद कश्मीर में जॉइंट एक्शन कमेटी को भारतीय फंडिंग के शवाहिद सामने आ गए। वज़ीर इत्तलात अता ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक शख्स को गिरफ्तार किया जिससे तहकीकात जारी हैं। मजीद मवाद बरामद किया है। एक्शन कमेटी दुश्मन से फंडिंग लेकर पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चला रही थी। रियासत मुखालिफ मवाद फैलाया जा रहा था। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे के पीछे भारत के अकाउंट शामिल हैं। पहले दिन से कह रहे हैं ज्वाइंट एक्शन कमेटी कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचाना चाहती है। पाकिस्तान के भारतीय वज़ीर दिफा के इश्तियाल अंगेज बयानात की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा कहते हैं जम्मू कश्मीर तनाज़ा अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर मौजूद है। भारतीय वज़ीर दिफा का बयान जम्मू कश्मीर तनाज़े के हक़ाइक़ मस करने के मुतरादिफ है। भारतीय वज़ीर दिफा का बयान इलाक़ाई आलमी अमन के खतरे में डालने की भारतीय पॉलिसी का आगाज़ है। भारतीय इल्ज़ामात जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जे से तवज्जो हटाने की कोशिश है। भारत का मकसद खत्ते में दहशतगर्दी की सरपरस्ती, दाखिली अदम इस्तेहकाम से तवज्जो हटाना है। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता साल ऑपरेशन बनियाल मरसूस में भारतीय जारियत का मौसर जवाब दिया। पाकिस्तानी कौम मुसल्लह फ़ौज हर भारतीय मुहिमजोई का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी से भारत के गैर ज़िम्मेदाराना रवैये का नोटिस लेने का मुतालबा। अमेरिकी सदर के ईरान पर हमले रुकने के ऐलान के बाद खाम तेल की कीमतों में कमी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 5% से ज़ायद कमी हुई। ब्रेंड खाम तेल 5.58% सस्ता होने के बाद खाम तेल की फी बैरल कीमत $91.3 हो गई। अमेरिकी खाम तेल की कीमत 5.46% कमी के बाद $84.43 फी बैरल हो गई। मोदी के गोदी मीडिया पर घर से आवाज़ उठने लगी। भारतीय तालिबान ने मोदी के गोदी मीडिया के झूठ बेनकाब कर दिए। नेहा बोरा ने बताया भारतीय पुलिस ने कश्मीरियों पर पैलेट गन से फायरिंग इतनी आम कर दी कि दिल्ली तक पहुंच गई। जो जुल्म सितम कश्मीर में हो रहे थे वो नई दिल्ली तक पहुंच गए। हम चुप रहे, कश्मीर में ये सब होने दिया। गोदी मीडिया उन्हें गद्दार और पाकिस्तानी एजेंट कहता था। आज गोदी मीडिया हमें एजेंट कह रहा है तो पता चल रहा है गोदी मीडिया पहले भी झूठ बोल रहा था और अब भी झूठ बोल रहा है। हम समझते थे हमारे बच्चे महफूज हैं, लेकिन ऐसा नहीं। ईरान अमेरिका से मुज़ाकरात जारी रखने पर तैयार। पाकिस्तान को पैगाम में मुज़ाकरात जारी रखने पर आमादगी का इज़हार। अल अरबिया न्यूज़ ने ईरानी ज़राए से बताया मुज़ाकरात जेनेवा, दोहा या इस्लामाबाद में हो सकते हैं। ईरान ने इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त के तहत मुज़ाकरात जारी रखने का पैगाम दिया। ईरान ने पाकिस्तानी हुकाम को बताया मुज़ाकरात से दस्तबरदार नहीं हुए बल्कि मुअत्तल किया। ईरान का पहले आबने हुर्मुज़ के मामले पर बातचीत से मुज़ाकरात शुरू करने का मुतालबा। कहा आबने हुर्मुज़ में नई गुज़रगाह का क़याम कबूल नहीं। अमेरिका और ईरान ने पाकिस्तानी और कतरी तजवीज़ पर मुज़ाकरात बहाली पर आमादगी ज़ाहिर कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिकी सफ़ीर कहते हैं सदर ट्रंप ईरान पर मज़ीद हमलों के बजाय मुज़ाकरात को तरजीह दे रहे हैं। अमेरिका जंग के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन सदर ट्रंप सिफारतकारी को मौका देना चाहते हैं। हालिया दिनों में ओमान, ईरान और हमारे दीगर मुज़ाकरात का हर सतह पर राब्ते में है। जंग का दायरा बहर अहमर और कैस्पियन तक फैल गया। हौसियों के बहर अहमर के करीब सऊदी साहिली शहरों में तेल की तनसीबात पर हमले। ईरान का यूक्रेन पर बहर कैस्पियन में ईरानी बहरी जहाज को निशाना बनाने का इल्जाम। यमनी बागुओं के ग्रोह हौसी मिलिशिया ने और जाजान ने आराम को तनसीबात पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। हौसी ने सऊदी अरब में ऑयल रिफाइनरी और तनसीबात को निशाना बनाने का दावा किया। सऊदी हुकाम कह रहे हैं हौसी मिलिशिया के हमलों को नाकाम बना दिया गया। अरब इत्तेहादी फौज ने सुबह हुदैद और जजीरा कुमरान में हौसियों के ठिकानों पर बमबारी की। जजीरा कुमरान यमन का सबसे बड़ा जजीरा और बाब अल मंदब के करीब। अमेरिका के साथ पैगामात का फाल तौर पर तबादला किया जा रहा है। तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान पैगामात का तबादला पाकिस्तान और कतर के सालिसे में किया जा रहा है। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल वक़ाई की ऑस्ट्रियन नशरियाती इदारे से गुफ्तगू। कहा हमले के दौरान तेहरान की अवलीन तरजीह अपनी खुद मुख्तारी का दिफा है। ईरान ने 30 दिनों में आबने हुर्मुज़ से महफूज गुजरने की यकीन दहानी का वादा पूरा किया। अमेरिका ने डेडलाइन खत्म होने से पहले ही जहाज़रानी वाक़यात को बहाना बनाकर हमले शुरू कर दिए। एक साल में तीसरी मरतबा मुज़ाकरात के दौरान हमलों से ईरान की सिफारतकारी को धोखा दिया गया। अमेरिका मफाहमत की याददाश्त के तहत ईरान के मुंजमद असासों को जारी करने में नाकाम रहा। एक वज़ीर-ए-आज़म और 4 वज़ीर-ए-आला वाला निज़ाम नाकाम हो गया। अब ये मजीद नहीं चलेगा। मुझसे विफाक़ी वज़ारत छीन लो, लेकिन मेरे लोगों को इख्तियारात और वसाइल दो। विफाक़ी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कराची में जलसे से खिताब। कहा 28वीं तरमीम में नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के क़याम का तरीक़ाकार भी लिखवाना पड़ेगा, जिसे आईन पाकिस्तान कहते हैं। उस खिताब में हमारे हकूक़ नहीं लिखे गए। हमें अपने हकूक़ इस आइन के खिताब में दर्ज कराने हैं। विफाक हमारे पैसे नहीं रोक रहा।
हमारे नाम पर पैसे दे रहा। सूबाई हुकूमतें हमारे नाम पर मिलने वाले पैसे हम पर खर्च नहीं करेंगी। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के नाम लिए बगैर मुस्तफा कमाल पर तनकीद। मीरपुर खास में जलसे से खिताब में एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह ने कहा, वो तंजीम मना नहीं रखती, यहाँ वादे नहीं मांगे जाते। एमक्यूएम में जो ओहदे मांगते हैं वो जूतियाँ रगड़ते रह जाते हैं। एमक्यूएम में सब कारकुन हैं, कोई उहदेदार नहीं। कारकुनान बताएं, ओहदे साजिश करने वालों को दें या ना मांगने वालों को दिए जाएं। जो एमक्यूएम में नहीं रहा कूड़ेदान में डाल दिया जाता है। कराची के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाने वाले बताएं कि पीएसडीपी में शहर के लिए कितना हिस्सा रखा। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर शाह कहते हैं, दीगर सूबों को अरबों के मंसूबे दिए गए, क्या कराची का हक नहीं? सूबे का शोशा छोड़ा जाता है, दोस्तों की बातों को संजीदा नहीं लेते। 4 सूबे संभलते नहीं, 12 कौन संभालेगा? मेयर कराची मुसाबहात ने कहा, हम जिसको बेकरी फ्लाईओवर बनाना चाहते थे, टाउन चेयरमैन जमात इस्लामी ने दरख्वास्त की कि ना बनाया जाए। पंजाब में तूफानी बारिशों से मामलात जिंदगी शदीद मुतासर। छत गिरने समेत मुख्तलिफ हादसात में 11 अफराद जान से गए। लाहौर में छतें गिरने के वाक़यात में खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। कसूर में छत गिरने से 2 अफराद लुक़मे अचल बने। गुजरात में मकान की छत मुनहदम, 3 भाई बहन जान से गए। गुजरावाला में पानी में डूबने से बच्चा जाँ बहक हो गया। गुजरात मुकीम में छत गिरने से खातून जाँ बहक, 4 जख्मी। महकमे मौसमियात की पंजाब समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में कल से मजीद बारिशों की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिशें, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया। सैकड़ों घराने मुतासर, शाहराहें, पुल और राब्ता सड़कें बह गईं। शाहरा कराक्रम, शाहरा दासू से हुंजा और नगर तक के मकामात पर बंद। बाबूसर रोड, बिल्तिस्तान रोड, नीलतर शाहरा, गजर, शंदूर रोड, अस्तौर वैली रोड और दीगर अहम रास्ते भी सैलाब और लैंडस्लाइडिंग की वजह से नाकाबिल इस्तेमाल। अस्तौर में लैंडस्लाइडिंग के बायस एक्सकेवेटर मलबे तले दब गया। ऑपरेटर को रेस्क्यू कर लिया गया। सड़क की बहाली में मुश्किलात का सामना, सयाहों समेत हजारों अफराद फंस गए। प्यासे कराची को फिर पानी की कमी का सामना। भावेजी पर बिजली के ब्रेकडाउन के बायस शहर को यौमिया 7 करोड़ 50 लाख गैलन पानी की फराहमी मुअत्तल। नॉर्थ नाज़िमाबाद, गुलबर्ग, न्यू कराची में पानी की सप्लाई मुतासर। लांडही, कोरंगी और स्कीम 33 के बाद इलाकों में भी पानी नहीं आ रहा। वाटर कॉरपोरेशन का कहना है घंटों गुजरने के बावजूद भी कि इलेक्ट्रिक धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली बहाल ना कर सकी। धाबेजी पंपिंग स्टेशन के 3 पंप आर्जी बंद हो गए। दौरे पाकिस्तान पर आए अमरीकी अरकान कांग्रेस रियान ज़ेनके, माइकल बाumgartner के एजाज में गवर्नर हाउस लाहौर में इशारिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से पाक अमरीका ताल्लुकात पर गुफ्तगू। माइकल बाumgartner ने कहा, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मजीद मजबूत और बेहतर होने की उम्मीद रखते हैं। अमरीकी वक्त का वज़ीर आला हाउस पंजाब का दौरा। सूबाई वज़ीर ने वफ़द का इस्तकबाल किया। वज़ीर ने सूबे में सेहत, तालीम, तवानाई, मवासलात के शुबे में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग की। वक्त ने लाहौर में पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का दौरा भी किया। अमरीकी कांग्रेस के अरकान ने मज़ार इकबाल पर हाजिर दी, फूल रखे, तासुरात कलमबंद की। बादशाही मस्जिद, शाही किला लाहौर, पिक्चरवाल, शीश महल का भी दौरा किया। अमेरिकी सदर ट्रंप को एक और शुक्ति का सामना। जिन सहाफ़ियों पर मुकदमे किए उन्हीं को अवार्ड देना पड़े। जेफरी एप्स्टाइन के नाम डोनाल्ड ट्रंप का बिना खत मंजराम पर लाने वाले वॉल स्ट्रीट जर्नल के 8 सहाफ़ियों को कैथरीन ग्राम अवार्ड बराए जुर्रत और एहतसाब दिया गया। भारत में काकरोच जनता पार्टी के एहतजाज में पाकिस्तानी अस्करी क़यादत की गूंज। नई दिल्ली में एहतजाज के दौरान भारतीय शहरी ने कहा, काकरोच जनता पार्टी के एहतजाज में शरीक तलबा पाकिस्तानी अस्करी क़यादत के गर्विदान। पाकिस्तान ने बनियाल मरसूस में मोदी को तारीख शिकस्त से दोचार किया। भारतीय शहरी ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी अस्करी क़यादत के हक में नारे लगाए। भारतीय शहरी मोदी हुकूमत के जाबराना रवैये पर शदीद भरम नजर आए। भारत से बुलंद होने वाली ये आवाज़ें पाकिस्तानी अस्करी क़यादत की शानदार कारकर्दगी और सलाहियतों का वाज़ेह सबूत हैं। मुसल्लह फ़ौज का कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर को 75वीं यौम शहादत पर खराज अक़ीदत। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद को खराज अक़ीदत। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद ने दिफा वतन में अपनी जान का नजराना पेश किया। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी शहीद हैं।